morning YouTube, it's Kaustubh back with another video on the channel, and today's video is gonna be very special because I am going out on a ride. So this is my baby right here, the KTM 390 Adventure. So आज का plan, as you have already seen the thumbnail and the title of this video, we will be going from Mumbai to Goa. So this is going to be the first vlog, I believe, of 2026 which I will be posting on my channel. And also one more thing which I plan to do is, like, this is not going to be a itinerary kind of a video which you see on YouTube usually, like things to do in Goa. This video is purely going to be my perspective about how my experience was going to Goa, and how everything was like. It is going to be my perspective towards traveling from Mumbai to Goa on an adventure bike. So that's the drill. And I will just quickly show you the bike, as I have struggled right now to load the bike completely with all the luggage system. तो कुछ बाइक अभी ऐसी दिख रही है. This is my Vitera Claw bag in which I have stuffed a lot of things. This was my bag which I had shown in my previous vlogs as well. So this I have tied it to my bike firmly. This doesn't move anywhere anymore. And also another addition which I have done is this beauty right here. You can see this is the DJI Action 5 Pro. So I have bought this new camera to shoot my ride POV videos. This is how it looks. This has a screen front and back, and I have mounted it to my helmet precisely. So this is going to be a very special ride, as I will be also shooting a lot of POV videos using this baby right here. So I'm pretty excited to use this. And talking about the kilometers which I have clocked till now. So I have clocked about 8,981 kilometers on the odometer of my bike. So अभी जो मुंबई गोवा राइड होने वाला है उसमें आई एम प्लानिंग टू टच 10,000. सो लेट्स सी इफ़ वी कैन डू दैट. एंड टॉकिंग अबाउट टूडेज टाइम, कन्वीनियंटली आज है 15th March 2026 एंड 6:08 हो रहे हैं. आई एम प्रिटी लेट. सो आई विल बी हेडिंग आउट क्विकली. बाइक कंप्लीट लोड हो चुकी है, एंड देर विल बी ऑल्सो अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हु विल बी जॉइनिंग मी ऑन दिस राइड विच वी विल मीट सून. सो फटाफट अभी निकलते हैं, बाइक लोड हो चुकी है, एंड आई विल सी यू एट द मीटिंग पॉइंट. The time is 7:08 and my friend has finally arrived. And आप क्या कहना चाहते हो लेट आने के लिए? नो कमेंट्स. ये आने का टाइम है 7:10. नो कमेंट्स. व्हाट नो कमेंट्स? नया हेलमेट अरे लिया तो open क्या नहीं लेट होता आने का क्या? क्या क्या? हाँ, नया हेलमेट लिया तो लेट आने का? अच्छा. ये दिस इज द न्यू हेलमेट व्हिच हैज गॉट KYT Oh, wow. and this is Is that bike good? Royal Enfield Bullet 350. It is a BS4 model, and this bike was previously with me on my previous long rides as well. So these are the two bikes which we are taking today for the ride, and this is my late Pradeep friend right here. टाइम इज़ 1:46 इन द इवनिंग, एंड हम पहुंच चुके हैं संगमेश्वर के आगे. तो इधर पीछे रुके थे फॉर दिस व्यू. जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइस.
doesn't this look like a view out of a painting? Like, just look at it, it looks crazy from here. So we thought we might stop here, take some great, take some quick photos and go on with the ride. So अब तक बाइक बहुत सही परफॉर्म कर रही है. मैंने स्पेशली जो कूलेंट डाला था इंजन आइस का, ये मेरा जो टेम्परेचर गेज है यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 डॉट पे ही है, सुबह से 4 ही डॉट पे है. तो कूलेंट जो था वो बहुत इफेक्टिव है, आई वुड से. द बाइक वेरी वेरी कूल इन दिस हॉट समर वेदर. एंड बहुत गंदी हो चुकी है, आप देख सकते हो. बहुत धूल कीड़े भी बहुत मर चुके हैं बाइक पे आके, बट इट इज़ परफॉर्मिंग रियली रियली वेल. एंड ये मेरा दोस्त है, उसने अभी जस्ट KYT का वाइज़र जो लिया था ब्लैक वाला वो स्विच किया है एंड इट लुक्स रियली गुड. सो उसका भी बाइक बहुत सही चल रहा है. इट इज़ द रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350. सो ऑफिशियली डे 1 कम्स टू एन एंड. हम पहुँचे थे चौकुड़ अराउंड 6:30 PM इन द इवनिंग एंड ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया. दिस आर सम ऑफ द शॉर्ट क्लिप्स विच आई शॉट. सो ऑफिशियली डे 1 कम्स टू एन एंड. इट वॉज एन अमेजिंग डे. हेलो यूट्यूब. सो टुडे इज़ डे 2 ऑफ आवर राइड एंड कल हम 6 बजे पहुंच चुके थे मेरे गांव. एंड उसके बाद व्लॉग करने का कुछ चांस ही नहीं मिला बिकॉज बहुत वी वर वेरी वेरी टायर्ड आफ्टर राइडिंग द बाइक्स फॉर लाइक 12 आवर्स. सो टुडे द डेट इज़, आई विल क्विकली शो यू द डेट. सो आज है 16 तारीख मंडे और अभी बज रहे हैं 11:50. सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से टू एक्सप्लोर माई विलेज अ लिटिल बिट. सो गांव में 2-3 मंदिर है जो देखने वाले हैं एंड सावंतवाड़ी जाने वाले हैं हम नीचे जस्ट टू हैव सम लोकल फूड, फिश फूड बेसिकली, विच आई वांट माय फ्रेंड टू ट्राई एज वेल. एंड मैं आपको क्विकली मेरा घर दिखा देता हूँ गांव का कैसे दिखता है. इट्स वेरी सीनिक, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई रियली लव बीइंग हियर. it feels good to be here basically. But yeah, I will just quickly show you my Chaukud village house. So कुछ ऐसा दिखता है. ये गेट है मेरा, गेट से एंट्रेंस होता है एंड दिस इज़ द हाउस. अभी थोड़ा कंडीशन उसका मेंटेनेंस उतना हुआ नहीं है, दैट्स वाई थोड़ा ऑफ लग रहा है. बट दिस इज़ हाउ इट इज़. इधर कांदा जो रहता है, कांदा उसका खेती है. कांदा एज इन अनियन की खेती है. Sorry for saying kanda. Then here I have parked my bikes, both of the bikes. My bike is here, okay, and this is my friend's bike. So this is how it looks. This is the walkway and इसको हम पड़वी बोलते हैं इधर कोकण में. So this is how the house looks. फ्रंट साइड पे पेंट है, वो साइड पे बारिश के वजह से कांस्टेंट वेदरिंग के वजह से पेंट फेड आउट हो चुका है. बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट पार्ट. And this is the second small gate of our house and this is the whole property as to how it looks. इसको पड़वी बोलते हैं हम लोग. पड़वी में basically it's like a storage house where we keep our essential things, old things and all. So this is how it looks from this side. This side का पेंट पूरा अच्छा है and ऊपर this is how it looks. It's pretty traditional, it's pretty OG I would say as to how it looks. And the weather is pristine. Right now it is 12 o'clock in the afternoon, but still I'm not sweating at all. That is how good the weather here it is. And this is how it looks. अभी हम पहुंच चुके हैं हिरण्यकेशी और इधर पीछे ही बाइक पार्क करके चल के जाना पड़ेगा अपेरेंटली, क्योंकि बाइक पूरा मंदिर के पास तक जाती नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. दिस इज़ लाइक अ स्मॉल ट्रैक. आई विल शो यू. दिस इज़ अ पाथवे which leads us to the temple. So this is where we are going. This Hiranyakeshu temple is located in Amboli. So मैं इधर पहले बहुत पहले आ चुका हूँ and this is the second time I am coming, like after almost
I guess 7-8 years is what I'm coming back. चुके हिरण्यकेशी टेम्पल एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इट्स रियली गुड, रियली पीसफुल एंड दिस इज़ द स्मॉल पॉन्ड. लाइक इधर का स्टोरी ऐसा है कि हिरण्यकेशी रिवर का जो सोर्स है ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से शुरू होता है. सो यहाँ से पानी फ्लो होता है एंड इट जॉइंस द रिवर फर्दर अहेड. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. रियली पीसफुल टेम्पल. लॉर्ड शिवा का टेम्पल है बेसिकली. We are done with lunch and we have came to this Marathi serial set from Ratris Khel Zale and this is the real Bangla. And if you know Anna Naik, वो serial देखा रहेगा, then you can pretty much relate to this. I was not aware of this, that this is in Sawantwadi. So thanks to my friend here for spotting it and coming here to have a look at it. Looks very real. And this is how it looks in the surrounding. Completely different than what we see in the serial, but yeah, still pretty surreal experience. गुड इवनिंग गाइस. तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30 एंड आज की तारीख है 17 मार्च 2026. सो दिस इज़ द डे 3 ऑफ आवर राइड एंड अभी हम निकल रहे हैं चौकुड़ से, मेरे घर से, टूवर्ड्स गोवा. सो आज हम गोवा में स्टे करने वाले हैं शाम को. तो अभी यहाँ से अराउंड 2.5 आवर्स का डिस्टेंस है एंड उतने टाइम 2.5 आवर्स एंड अराउंड 120 किलोमीटर्स है मेरे गांव से करंटली इन चौकुड़. सो फटाफट अभी वही प्लान है कि निकलना है और बहुत लेट हो चुका है. अभी 12:30 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. तो अराउंड अराइवल 3:30 का दिखा रहा है गोवा में. सो होपफुली वो टाइम तक हम पहुँच जाए. तो दिस इज़ हाउ द बाइक इज़ लुकिंग. अभी पूरा लगेज टाई कर दिया है टाइटली एंड इट इज़ ऑल टाइड अप. इधर ऋषिकेश का बाइक है, इधर ऋषिकेश है, ऑल सेट. एंड वन फाइनल लुक एट माई हाउस. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. बहुत सही एक्सपीरियंस था यहाँ रहने का और स्पेशली बाइक से यहाँ आना मेरे लिए इट वॉज अ बकेट लिस्ट आइटम विच इज़ फाइनली टिक्ड ऑफ. एंड आई होप आई कम मोर विथ माई लव ऑफ माई लाइफ टू माई नेटिव विलेज हाउस विच इज़ चौकुड़ हियर इन अम्बोली, नियर अम्बोली इन सावंतवाड़ी. तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:40 एंड अब तक बाइक चली है 686 किलोमीटर मुंबई से. सो अभी देखते हैं यहाँ से ट्रिप को रिसेट करके हाउ मच इट वुड टेक टू रीच गोवा फ्रॉम चौकुड़ हियर. तो क्विकली निकलते हैं. अगर रास्ते में कुछ अच्छा दिखता है तो वी विल डेफिनेटली शूट इट एंड शो इट टू यू गाइस. अभी हम चौकुड़ से जस्ट निकले थे और ईसापुर क्रॉस किया और हम लोग इंटीरियर सीनिक रूट से आ रहे. सो उसके वजह से अभी एक नया रोड है जो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है काइंड ऑफ. ईसापुर से टुवर्ड्स गोवा जाता है डोडा मार्ग की तरफ एंड जाते जाते हमें बहुत क्रेजी व्यू दिखा है विच आई वुड लाइक टू शो यू गाइस. सो आई जस्ट सी दिस व्यू. So right after seeing the amazing viewpoint, we headed down. जो घाट रास्ता था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, कम्प्लीटली कच्चा रास्ता था और पूरा लाल माटी का था. सो दिस इज़ द जेन्युइन लाल माटी रेड सॉइल आई वुड से, जो कोकन में रहता है और एक स्पेशलिटी भी है और सुवीनियर भी है. सो वी वर हेडिंग डाउन दिस रोड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई गॉट टू राइड माई बाइक इन एन एडवेंचर काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट. सो पूरा रोड सैडलिंग करके खड़ा रह के बाइक पे ऑफ रोड किया एंड बहुत स्लो जा रहे थे, ज़्यादा कुछ स्पीड अप नहीं करने मिलता है ऐसी सिचुएशन में. यू हैव टू राइड वेरी केयरफुली एंड दिस इज़ व्हाट यू गेट एज एन आफ्टर मैथ. सो पूरी दोनों बाइक्स लाल माटी में पूरे लाइक ड्रेंच थे
so we had to clean them up a little bit, and yeah, it was really fun heading down from Ghat Road up there. गुड मॉर्निंग यूट्यूब। सो आज है डे 4 हमारे राइड का, और आज का टुडेज डेट इज़ 18 मार्च एंड टाइम हो रहा है 7:50 सुबह के। सो कल जो लास्ट व्यू फुटेज देखा था उसके बाद कुछ शूट ही नहीं किया, बिकॉज वी रीच्ड गोवा एट अराउंड 5 PM इन द इवनिंग आई वुड से। उसके बाद बीच पे गए थे, बीच पे घूमे, एक कैलमगुट और कैंडोलिम घूमे थे, वहाँ पे फुटेज थोड़ा बहुत शूट किया रहेगा। एंड देन आके रूम पे क्रैश हो गए थे, बिकॉज दोनों के दोनों थक गए थे ऑब्वियसली आफ्टर राइडिंग। बट द टोटल डिस्टेंस विच वॉज देयर फ्रॉम माई विलेज हाउस सऊपुर से यहाँ गोवा में, इट वॉज 76 किलोमीटर, बिकॉज से अ शॉर्टकट काइंड ऑफ अ थिंग। नया एक घाट हो रहा था ईसापुर से दोड़ा मार्ग के बीच में, सो पूरा ऑफ रोड बैच था, उसका भी मैंने फुटेज अटैच किया रहेगा, और जो व्यू दिखाया था वो वही घाट का था। सो इट रियली कट्स डाउन द डिस्टेंस बिटवीन गोवा एंड माई विलेज। सो इट इज़ अराउंड अबाउट 80 किलोमीटर्स इज़ वॉट द डिस्टेंस इज़, बट नॉनदलेस आई एम हियर इन गोवा राइट नाउ। और जैसे कि आप देख सकते हो इन माई बैकड्रॉप, ये मेरे एयरबीएनबी के गैलरी से ऐसा व्यू आ रहा है। नॉनदलेस मैं आपको क्विकली एक पैनोरामिक बी रोल दिखाता हूँ। द व्यू फ्रॉम दिस गैलरी इज़ रियली गुड। लोकेशन है हमने स्टे बुक किया, दिस इज़ नॉट एन होटल, दिस इज़ एन एयरबीएनबी प्रॉपर्टी। सो एयरबीएनबी इज़ लाइक अ प्राइवेट रेसिडेंशियल हाउस विच पीपल यू नो गिव ऑन रेंट काइंड ऑफ अ थिंग। सो वही हमने रेंट किया। हमें अराउंड पड़ा है ये 10.7K फॉर 5 days, विच कम्स टू अराउंड 2100 अ नाइट, विच आई फील इज़ प्रिटी डिसेंट फॉर दिस प्रॉपर्टी, फॉर दिस रूम थोड़ा छोटा है बट गेट्स द जॉब डन आई वुड से। लाइक गैलरी अच्छा है, लोकेशन भी मेन पॉइंट से पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा क्राउडेड और ज़्यादा कमर्शलाइज्ड नहीं है। सो दैट्स दैट। बट या सो पिलर ने गोवा में हम करंटली स्टे कर रहे हैं, और आज हमारा है डे 4 ऑफ द राइड। सो आज हमारा प्लान है कि अंजुना बागा बीच एक है दूसरा, एंड चापोरा फोर्ट जो है तीसरा, वो एक्सप्लोर करने का। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज़। गोवा में गर्मी अभी सुबह तो नहीं है इतनी, बट आई गेस आफ्टर 11-11:30 द हीट इज़ रियली हाई। हम निकल रहे हैं बाइक्स लेके। सो एक अभी ट्रेजेडी और एल्स प्रॉब्लम हो चुका है ऋषिकेश के बाइक के साथ, कि उसका जो ऑयल सील है इंजन केसिंग का, वो लीक हो रहा है थोड़ा सा। सो अभी हमारा प्लान है कि ब्रेकफास्ट करेंगे फटाफट। एक कांची कैफ़े करके है इधर से 5-6 किलोमीटर पे। ब्रेकफास्ट करके वी विल गो टू द रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर एंड गेट दिस फिक्स्ड, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली ऑयल लीक हो रहा है इंजन से, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। एस्पेशली वी हैव टू अगेन ट्रैवल लाइक राइड द बाइक फॉर अबाउट 600 किलोमीटर्स। सो राइडिंग इट ऑन लो इंजन ऑयल इज़ नॉट द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वी वांट आवरसेल्व्स इन। पैसा ऐसे जरा फोन पैसे रहा मेरे को नहीं पैसा नहीं। गुड इवनिंग यूट्यूब। टुडे इज़ डे 5 ऑफ आवर राइड, एंड कल हम लोग जैसे कि मैंने बोला था कि बाइक का सर्विसिंग करने गए थे, बिकॉज मेरे बाइक का ब्रेक पैड जोन आउट हो गया था। सो मुझे भी जाना पड़ा KTM मपूसा में, एंड ऋषिकेश का जो बाइक है उसका भी इंजन ऑयल का थोड़ा इशू था, वो भी हमने फिक्स किया। सो कल का दिन पूरा हमारा बाइक के सर्विसिंग में ही चला गया अनफॉर्चुनेटली। शाम को खाली हम लोग बीच पे गए, थोड़ा चिल किए, खाना खाए और आके सो गए, बिकॉज वी वर वेरी फटीग्ड आफ्टर यू नो फिक्सिंग आवर बाइक्स फॉर द होल डे एंड लुकिंग फॉर पार्ट्स एंड रनिंग अराउंड इन गोवा। बट नंदलेस आज है हमारा डे 5। सो आप देख सकते हो इट इज़ 19th ऑफ मार्च, एंड अभी टाइम बज रहा है 12:20। सो अभी हम फुल रेडी हो चुके हैं, एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। तो आज हम जाने वाले हैं मोस्टली फोर्ट्स और चर्चेस एक्सप्लोर करेंगे, एंड शाम को अरम्बोल जाने का प्लान है। अरम्बोल बीच जो नॉर्थ में आता है, तो थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ से, अराउंड 30 किलोमीटर्स है, बट फोर्ट्स एंड चर्चेस जो है वो आसपास ही है। सो वही कुछ प्लान है, एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज़। आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस। Baby, I love you.
अगुआडा फोर्ट, अगुआडा लाइट हाउस बेसिकली। सो ऐसा कुछ लाइट हाउस का व्यू है मेरे आसपास में एंड बहुत ही क्रेजी व्यू है। दिस इज़ द होल ओशन बिहाइंड मी। इधर ये रेडार है विच आई बिलीव इट इज़ अ रेडार टू स्पॉट शिप्स एंड ऑल। एंड इधर बीच दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी देयर, राइट देयर, इट इज़ राइट देयर। तो बहुत सही लोकेशन है, बहुत सही व्यू है। मैं आपको क्विकली कुछ बी रोल शॉट दिखाता हूँ ये लोकेशन के। हम पहुंच चुके हैं चापोरा फोर्ट और मेरे सामने बहुत क्रेजी व्यू है गाइस। लाइक आई वुड लाइक टू शो दिस व्यू इवन दो द सन इज़ रियली हिटिंग मी हार्ड इन द फेस, बट ये पीछे आप देख सकते हो, दिस इज शापोरा फोर्ट। सो शापोरा फोर्ट का काइंड ऑफ रेनोवेशन चालू है। सो इट इज़ इन रूइंस, यू कैन सी कुछ कुछ व्यू पॉइंट्स है। अभी ये एक व्यू पॉइंट है जिधर मैं और मेरा दोस्त ऋषिकेश बैठे हैं एंड आई विल जस्ट क्विकली शो यू द व्यू अराउंड। इट इज़ रियली क्रेजी। Look at this, I like sitting here with this view. Isn't this crazy? Like ये पूरा वैगेटर बीच है एंड बहुत क्लीन बीच लग रहा है, वाइट सैंड बीच जिसे कहते हैं, काइंड ऑफ वैसा है और पूरा ऐसा आइसोलेटेड बीच के जैसे दिख रहा है फॉर सम रीज़न एंड इट इज़ लुकिंग रियली सीनिक। साइड पे आप देख सकते हो वो मोर जिम है, करंटली ये वैगेटर है इधर एंड ऑन दैट साइड वी हैव मोर जिम बीच और नॉर्थ गोवा है आगे का। अभी हो रहे शाम के 6:30 हो रहे हैं राउंड अबाउट और हम लास्ट थे चापोरा फोर्ट से। चापोरा फोर्ट से हम आ गए हैं अरम्बोल बीच एंड अरम्बोल बीच बहुत ही क्रेजी लग रहा है। जस्ट लुक एट दिस सनसेट एंड यही सनसेट देखने के लिए हम लोग बहुत दूर आए। लाइक होटल से अबाउट 20 किलोमीटर्स है हमारे एयरबीएनबी के स्टे से, बट नॉनदलेस दिस इज़ एन एब्सोल्यूट वर्थ इट प्लेस। और ये कम्प्लीटली नॉन कमर्शियल बीच है काइंड ऑफ, मतलब क्राउड है बट ज़्यादा भी नहीं है और ज़्यादा कमर्शलाइजेशन भी हुआ नहीं है। सो फील्स गुड। सो अभी प्लान है कि थोड़ा पानी में जाएंगे हम लोग। गुड इवनिंग यूट्यूब। सो आज है हमारा डे 6 ऑफ स्टेइंग इन गोवा एंड टुडे द डेट इज़ 20 मार्च और अभी बज रहे दोपहर के 1। सो आज बहुत रिलैक्स्ड मैनर में हम एक्सप्लोर करने वाले गोवा, ऐसा प्लान है फ़िलहाल। सो राइट नाउ वी आर इन द पूल जो हमारे एयरबीएनबी में इंक्लूडेड था। सो दिस इज़ द पूल, दिस इज़ माई फ्रेंड राइट हियर। और अभी पूल में थोड़ा मस्ती करेंगे, खेलेंगे, दैट्स द प्लान। एंड आफ्टर दिस वी आर प्लानिंग टू हेड टू लंच and post lunch we are planning to explore 3 locations mainly, which one of them is Rees Magus Fort, second one being the Immaculate Conception Church which is a scenic church, पूरा वाइट वॉश चर्च है, तो वो भी एक है, देखना है मुझे क्या है एग्जैक्टली। एंड द थर्ड थिंग इज़ जापानीज़ गार्डन विच इज़ इन पंजिम, तो वो सबसे फर्देस्ट पॉइंट है आज के हमारे आइटिनरी में। बट लेट्स सी, ये 3 लोकेशन एक्सप्लोर करने हैं। अच्छा दिखेगा, शूट करेंगे एज ऑलवेज। एंड टुडे इज डे 6, वी डिडंट रियलाइज एज टू हाउ फास्ट टाइम इज़ गोइंग, बट इट इज़ गोइंग रियली फास्ट। और देखते देखते संडे आ जाएगा और संडे मुंबई की तरफ वापस भागना है। सो जितना हो सकता है उतना खींचना है आज और कल में और एक्सप्लोर करना है एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस गोवा ट्रिप। अब तक का एक्सपीरियंस बहुत टॉप नॉच था, कल भी बहुत अच्छे खासा हमने एक्सप्लोर किया। अरम्बोल तक गए थे हम लोग और वो भी ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स है पिलरने से, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं।
सो दैट्स द प्लान. सो टुडे आज 3 लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे. अभी हम पहुंच चुके हैं रीस मैगिस फोर्ट और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 अराउंड अबाउट. और ये फोर्ट है, हम लोग फोर्ट का क्लाइंब कर रहे हैं यहाँ से. एंड बहुत स्टीप क्लाइंब है काइंड ऑफ. सो देखते हैं ऊपर जाके मांडवी रिवर का व्यू आता है. यहाँ से मांडवी रिवर है. सो लेट्स सी हाउ इट इज़. आई होप इट डजंट डिसअपॉइंट. टिल नाउ द एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड. सो लेट्स सी हाउ द व्यू इज़ ऑन द टॉप. और आज दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे. Full white with red shoes, white pant, floral shirts and Ray-Ban, not Ray-Ban, these are Lenskart Wayfarers I believe. So this is the outfit of the day, and this is my friend Rushikesh, completely exhausted because of Not yet. not eating anything. Yeah, And he's starving right now, but I am not, so I'm happy about it. अभी हम पहुंच चुके हैं फोर्ट के टॉप पे, रीस मैगिस फोर्ट के टॉप पे. एंड कुछ ऐसा व्यू है, ये पीछे दिख रहा है. यहाँ से हम ऊपर आए थे. एंड दिस इज़ द टॉप सॉर्ट ऑफ वॉच एरिया आई वुड से. एंड द व्यू फ्रॉम हियर ऑफ मांडवी रिवर इज़ रियली अमेजिंग. आप देख सकते हो, दिस इज़ मांडवी रिवर. एंड ये जो 2 वाइट डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लोटिंग कसिनोज़ है गोवा के. सो अपेरेंटली माई फ्रेंड टोल्ड मी कि कसिनोज़ आर नॉट अलाउड ऑन लैंड, सो इसलिए वो दोनों कसिनोज़ फ्लोटिंग है. सो वो भी है यहाँ पे, वो भी देखेंगे, टाइम मिला तो एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली. एंड पीछे जो ये ब्रिज दिख रहा है, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू बांद्रा वर्ली सी लिंक ऑफ मुंबई. सो दैट वाज समथिंग फैसिनेटिंग. और फोर्ट ओवरऑल बहुत खाली है, आई डोंट नो व्हाई, बट फ्राइडे है करके. और यहाँ पे मस्त एस्थेटिक एकदम वॉल्स है फोर्ट्स के, फिर तोफ रखे हैं यहाँ पे. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो बी-रोल शॉट्स में मैं आपको दिखाता हूँ. और हम आ चुके हैं इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च. आप पीछे देख सकते हो मेरे. दिस इज़ हाउ द चर्च लुक्स. इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, सो ऊपर जाने मिल नहीं रहा है, बट कुछ ऐसा ही दिख रहा है. एंड बहुत रश है इधर, आप देख सकते हो मेरे आजू बाजू में. सो क्विकली फ़ोटोज़ लेके निकल लेंगे. एंड दैट्स द प्लान. हम पहुंच चुके हैं, वास्को में है. ये है जापानीज़ गार्डन करके, ऊपर ही है. तो हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं अभी एंड जा रहे हैं ये बीच पे. सो ये काइंड ऑफ एन हिडन बीच है नियर जापानीज़ गार्डन. तो वही अभी नीचे जाके देखते हैं. बहुत लेट हुआ पहुंचने में बिकॉज इट वाज अबाउट 30 ऑड्स किलोमीटर फ्रॉम आवर स्टे. सो टाइम तो बहुत लगा है, बट देखते हैं. लेट्स एक्सप्लोर दिस बीच राइट हियर एंड सी. हम पहुंच गए हैं जापानीज़ गार्डन जो था ऊपर, इधर है जापानीज़ गार्डन. सो वहाँ से पूरा ट्रैक करके ये जो स्टेयरकेस है वहाँ से आके हम लोग नीचे आ चुके हैं बीच पे. और ये कंप्लीट प्राइवेट बीच है गाइस. सो जस्ट लुक एट दिस. और अभी गोल्डन आवर हो रहा है. सो द वाइब्स आर वेरी वेरी इमैक्युलेट आई वुड से. और बहुत सही व्यू है. मैं आपको बी रोल के थ्रू दिखाता हूँ. डेफिनेटली दिस इज़ अ बी रोल वर्दी शॉट विच इट इज़ वर्थ शूटिंग. यूट्यूब. सो आज है हमारे ट्रिप का डे 7 एंड आज की तारीख है 21 मार्च 2026 और अभी बज रहे दोपहर के 12:26 अराउंड अबाउट. सो आज ज़्यादा कुछ
क्रेज़ी या फिर ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने का ऐसा प्लान नहीं है, आराम से सब करना है। सो अभी आज की हमारी आइटिनरी है कि वी आर हेडिंग टू फर्स्टली बागा बीच में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत सारे होते हैं, सो वहाँ देखना है। मेनली मुझे पैरासेलिंग करने का बहुत इच्छा है, सो लेट्स सी पैरासेलिंग का कैसा क्या रेट्स है। आई हैव हर्ड इट इज़ 1200 पर पर्सन फॉर 3-4 मिनट्स। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। दोपहर का लंच भी करना है एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज़। पैरासेलिंग के लिए आई एम प्रिटी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड इट एंड गोवा में लाइसेंस्ड ऑपरेटर्स रहते हैं, सो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, आई होप सो। मॉर्निंग यूट्यूब। सो आज है हमारा डे 8 ऑफ द राइड एंड आज है फाइनल डे ऑफ द राइड। सो आज का प्लान है गोवा से मुंबई निकलना। ओरिजिनली प्लान था कि सुबह 5:30 बजे उठ के निकलना, बट यू नो प्लान एक रहता है और होता कुछ अलग है। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड राइट नाउ। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:54 हो रहा है एंड डेट टुडे इज़ 22 मार्च 2026। So this is day 8 of our whole trip from Chaukur till Goa and last day. So आज का प्लान है गोवा से मुंबई की तरफ जाना है एंड किलोमीटर वाइज डिस्टेंस देखा जाए देन इट इज़ अबाउट 534 किलोमीटर जो गूगल दिखा रहा है, बट ऑलवेज गूगल एक दिखाता है और एक्चुअल क्लॉक जो होते हैं किलोमीटर्स ज़्यादा होते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग राउंड अबाउट 600 किलोमीटर्स का राइड होने वाला है एंड इट इज़ गोना टेक अबाउट 11.5 आवर्स एट द बेस्ट। सो कम से कम हॉल्ट लेना है और पहुंचना है, दैट्स द प्लान, जल्दी से जल्दी घर पे। टुडे इज़ संडे बाय द वे और गोवा में अभी 7 बजे बहुत ही सीरीन और प्रिस्टीन वेदर हो रहा है। आप देख सकते हो पीछे बैकड्रॉप, तो पूरा फॉग मतलब वो वैली जो है वहाँ पे बैठ चुका है एंड इट लुक्स रियली गुड। और ये फ्रेम भी बहुत सही आ रहा है बिकॉज सनराइज़ हो रहा है अभी सुबह के 7 बजे। सो आई एम ऑल रेडी। अभी सिर्फ मेरा राइनॉक्स का गियर पहनना है एंड बैग तो मैंने लोड कर चुका हूँ बाइक के ऊपर एंड मेरा दोस्त भी रेडी हो रहा है। सो फटाफट अभी निकलना है, ब्रेकफास्ट करना है एंड मुंबई की तरफ पहुंचना है। सो दैट्स द गोल। और आज ज़्यादा कुछ शूट करने का तो एज इन प्लान नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया देन आई विल डेफिनेटली शूट और एल्स यू विल सी हाउ द राइड गोज़ एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। Whatever. Please, I want to reach 1 million.